start the recording. So later, once it will class will over, so we'll share this recording link to you, so you can download that video from there, and you can use in future. And in between, if you have any query, so you may frequently ask without any hesitation, right? So today we are going to look on the V model, right? So V model, what are the advantage of using this V model, and what are the major role it's playing in our software development process, right? So in last class, we have looked on the waterfall model. So they having some drawbacks, uh, like um uh, once like we are starting to work on any features, right? So if that a specific model or a specific feature has been completed, then after we can move to the next feature, right? And like in between that, like if there will be any requirement got changed in the previous one, like the in previous feature, so we cannot work on that, right? We cannot do any changes in that. So for that, like we need to consider one again the new cycle for that, right? So these are the like few drawbacks like in the waterfall model. So that's why to overcome that, we move to the like the V model, right? So V model, we can say the V model is a type of SDLC model, right? So where the process execute in a sequential manner in VC, right? So this is also like called, we can also say like a V and V model, not and like this symbol, V and V model, V and V model, right? So V and V means, what do you mean by the V and V? Like this is for the verification and this V is for the validation, right? So most of the places you will get like this, and on the few places you will get like the V model like this, right? So like if you will get like V and V, so you can also understand like this is a V model, right? So here like this is a part of the SDLC, right? So this is we use to perform everything in a V shape, right? So in V shape, like this is also called like the verification and the validation, right? V model is a SDLC model that has a testing phase corresponding to the every development phase in a waterfall model, right? So like whatever we having the testing phase corresponding to that, we having the development phase. So like in a parallel way, we can perform like the both process, right? So I can show you one diagram here, so you can understand in the very good way. So here this is a V shape, right? V shape means this side we can say like the verification, and this side we can say like the validation. So verification means like here you can say like the we are capturing the requirement, the software specification process. Here we having the design process, like the high level design, low level design, right? So this side like the verification process, like everything we are making sure like our whatever the requirement we have been, based on that we are feasibly we are allowing to develop this software. After that we are doing some design over there. In between that we are also designing some manual test cases or creating some document, right? And once the coding has been completed, then we are using the whatever the test case we have created manually. So we are starting executing those test cases and starting the validation. So here you can say like the verification, and here the validation. So in the validation, what we are doing, like we are doing the unit testing, we are doing the integration testing, we are doing the system testing, we are doing the acceptance testing.
and each phase are corresponding to each other. Like the unit testing phase are corresponding to the low level design, right? Here integration testing are corresponding to the high level design. System testing is corresponding to the software specification, and acceptance testing corresponding to the user requirement. So all phases are here parallelly, right? So if there will be any issue came here, so directly we can jump from this side to this side, right? So this, like we can perform like here we need to do the validation. Sorry, here do the verification and here do the validation, right? So this is the diagram of that one, like the V and V. So it's also looking in the VC. So first we need to go from top to down here. So it will contain like the all the requirement, all the test case design, all the documents related to that. And at the end it will come like the bottom. So in the bottom, like it will contain the one coding section. So here the development got completed, right? So once the development has been completed, so obviously our testing part will start. So we will start using all these document whatever created here this side. So we will try to execute all those things here and try to perform the multiple type of testing over there, right? So any query in between regarding this model or the points whatever mentioned here? Please speak, so I will make sure like you are getting, or if not you can type in the chat itself, so it will make confirm like. Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so is there any query or everything is like you are getting all those, everyone? No, sir. Okay. So next we having the points like this point. That means there is a direct link between the testing cycle as well as in the development cycle. So here I told like all the phases are corresponding to the each other phases, right? So we can say like there is a direct link between the testing cycle as well as in the development cycle. So like while testing, like if there will be any error encountered, any bug encountered, so we can directly communicate with the development team, right? And once the development team will they will fix that like the bug, so they can directly assign that a bug to us to further retesting. So there will be a direct relation between there, right? And we can also say like we can perform the parallel testing also over there, right? The V model is an extension of the waterfall model, right? So they having some drawback in the waterfall model. So to overcome that one, we having the another model that we call the V model, right? So we can say like that. Here V model testing is done in the parallel to the development, right? So we already discussed over here. So here we can say like the testing is done in the parallel to the development. So in which sense the testing and the development are in the parallel mode. So like the developer start their coding in this section, right at the bottom. But in this duration, what the test engineer do, because the whatever the task has been assigned, so the every team member got the same requirement, same like the understanding on the project. So at that time, like the development team started their coding like in a one side. Designing team start designing their like the application, like the blueprint or like the application UI user interface. So in between, what the test engineer do? So the test engineer, they start writing their test cases or creating their test document based on the requirement, right? Because they all the teams like the designing team, coding team, testing team, so they all got the same requirement at the same time.
right? So if once like the developers start their developing, parallelly the designing team start designing their application design, means the application like the high level and low level design. And similarly the test engineer start working on the like the writing their test cases, creating their test document, right? So using those test cases or test document, once the development has been completed, then using those they will start executing all those test cases to test the application functionality here, right? So that's why here it's saying like the in the V model testing is done in the parallel to the development, right? So testing team like they start working accordingly, and once like also in the verification process they start working parallel, right? Like where they will find any bugs, so they will directly assign to a developer. Once they will fix, then they will assign to the testing zone. So these are the parallel works, like they are not sitting idle, right? So they are busy in their work. Whenever they will get the like the bug, they will start working on that. When they will get the like the uh, bug fixes for the retesting, so they will start on the retesting itself, right? So this is the process for that one. Next process, like the V model in software testing is highly specific model, and movement to next only occur after completion of the first cycle, right? So here like whatever we having like the requirement, sorry, whatever we having like the any model or any feature has been tested, right, assigned like some specific you can see the example of the login page, right? So we have like one assignment for that, we need to test the login page functionalities. So like in between that, like once we start testing on that, so once that will the testing has been completed successfully for that a specific feature, then we can move to the next step, right? Meanwhile, we cannot move to the next step before completing that one. And in between, like any requirement got changed, right? So we can also need to consider that one. We are not going to leave that one, or we cannot say like you cannot go back, right? So these were the because this was the drawback in the waterfall model, right? So to overcome that one, the B model had been introduced. So like once like anything has been any model or any feature got like the completed or got tested and got stable, and we move to the next step. But but suddenly some requirement changes has been occurred, right? So in that between, what we need to do, we need to go and do the modification or do the whatever the modified testing we have. So we need to go through that and perform the testing accordingly, right? We cannot leave that idle, right? Here in the V model, the testing phase and the development phase are designed in such a way that they are planned parallel to each other, right? So we already earlier discussed like both team should start working in the parallel way. So like at either in the beginning stage, like once we start the basic things like from the like the requirement gathering, and apart from that like the designing as well as in the coding phase, right? So everything, every team having their own task, right? So all teams either we can say like in the development team, testing team, design team, so they start all working in a parallel way, right? So like once they will start working parallel way, right? So everything they having the deadline like when we need to complete which task, so they can like the remaining team can start their own like the on work, right? So like initially we can say like once the designing team has been completed their design, right, then the development team will start their development process based on the UI part, right? So whatever the user interface has been designed by the designing team, right? So correspondingly development team start writing the code accordingly.
And once the development team has been completed writing the code, then testing team start the testing accordingly, right? So everyone having the dependency in the initial phase, but based on the time constraint, they try to complete their some basic work, right? So once like the they are like the other team like the completed their task and hand it over to the other team, right? Then they can start working accordingly. So I can let's take an example. uh, uh, we can take an example, so it can give a clear design, clear view. So here we can say suppose this is a sign in button. So I am clicking on this, and here this is a login feature, right? So we are taking as an example for this. So we having three teams, right? We having like the design team, coding team, and testing team. So initially, like everyone sit there, and the requirement came, and the BA has been given the introduction about this feature to all those teams. So like they having the like the design team, they having the development team, and they having the QA team, right? So everyone got the requirement, like we having the username field, we having the password field, we having the forgot password, and we having the sign in button. So we having this field, and we need to create one login feature functionality. So once like the requirement has been handled, right? So QA cannot start testing on this because nothing has been developed, right? Development cannot start writing the code because no UI has been written over here. So if the UI is not available, so how they can they can do the coding in the backend for this one, but they can create some APIs, right? In the meanwhile, right? Means like some dummy API they can create meanwhile, right? And designing team start like first on this UI part. So they will design all those fields, right? Once the designing has been completed for this UI, so they will hand it over to the development field. So development team will try to write the all the functionalities, like whatever the validation we are going to put, like it contain only the email address, right? And it contain only a password, so they having some password like the restriction, like only it should contain like the one uppercase, one lowercase, one integer, one special character, right? So this type of format it will contain. Here once we click on the forgot password link, so it will navigate to some page where user need to enter their username and they need to submit there. So some email will be sent to their email address, so and from there they can reset their password. And once like we click on the sign in button, so it should navigate to the home page like this, right? So this type of feature we can develop, right? So here like once the development team will start completed their development part, right? So they will return all those code and their reflection accordingly, right? Then it will come to the testing, right? And test what the testing team will do, so they will start testing the application behavior. So what the username, what the email address field contain, right? What the password field contain, right? So whatever the combination will be over right there, like email address does not contain the mobile number, right? So this will be like the positive or negative scenario. So we will start testing accordingly, right? After like once like user click on this, so some like the page will open, right? And they will ask for enter their username or email address to forget the password. So this type of requirement we have, and meanwhile we have already created the test cases correspondingly. So we will start executing all those things for the testing perspective, and try to test the application behavior, whatever the customer requirement we have, right? So these are the phases we need to follow, right? So here the we come to know like what are the phases, like we having the three teams, and they everyone work in a parallel way. So
So they having some different work, so they will start working, and once they will get their own actual work, then they will start like the implementation according, right? Any question, any query anyone have, so they can ask. So shall I move? हेलो Yeah. सर, मुझे ये जो आपने डायग्राम दिया ना, उससे मुझे थोड़ा बहुत समझ नहीं आया अच्छा, एक्चुअली। हाँ, कौन सा डायग्राम, ये वाला? वाला, हाँ, ये वाला, और उससे आगे आपने वो लिंक, मतलब वो आपने एग्जांपल दिया था ना, वो वाला। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है कि जैसे कि हम हमारा जो इसमें वर्क होता है ना, वो पैरेलल होता है, ठीक है। पैरेलल इन द सेंस, इसमें क्या होता है कि जैसे कि इसमें हमारा कोई भी, यहाँ पे जैसे देखिए आप, यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेज में यूजर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हम लोग इसी के थ्रू चलते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू, राइट। यहाँ पे यूजर रिक्वायरमेंट है, तो यूजर रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि जैसे कंपनी में कोई बिजनेस एनालिस्ट होता है, राइट, तो वो क्लाइंट प्लेस पे जाता है और वहाँ से जो भी उसका रिक्वायरमेंट होता है, तो वो रिक्वायरमेंट लेके आता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप एक एग्जांपल आप ले लो, जैसे कोई भी आप एक शॉपकीपर ले लो, या कोई भी आप एक होटल ले लो, रेस्टोरेंट ले लो, ठीक है। अगर वो एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, तो उसका एक रिक्वायरमेंट है कि हमको एक एप्लीकेशन डेवलप करना है, ठीक है। तो हमारे कंपनी, जैसे कि कोई कंपनी है, तो उस कंपनी से कांटेक्ट किया कि हमको एक एप्लीकेशन डेवलप करवाना है हमारे रेस्टोरेंट के लिए, जिसमें कि हम अपना ऑनलाइन ऑर्डर ऐसे ये डिलीवरी कर सकें, राइट। तो ये इस हर एक कंपनी में एक बिजनेस एनालिस्ट होता है, राइट। तो वो बिजनेस एनालिस्ट क्या हुआ, वो बिजनेस एनालिस्ट कहाँ पे गया, वो क्लाइंट प्लेस, मतलब वो हमारे लिए क्लाइंट हो गया, जो रेस्टोरेंट का ऑनर है। तो वहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट गया और उसने पूछा कि सर आपको एप्लीकेशन डेवलप करवाना है, तो आप अपना रिक्वायरमेंट हमको बताइए कि क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो बिजनेस रेस्टोरेंट के ओनर ने बताया कि हमारा रेस्टोरेंट है, हमारे यहाँ दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन की, राइट। अब इसमें जैसे कि ऑफलाइन है, तो अगर कोई यूजर आता है तो हम तो यहाँ पे जो भी है वो ऑर्डर देता है, उसके अकॉर्डिंग हम सर्व करते हैं, वो अपना जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हम पेमेंट लेते हैं, राइट। और हमारा ये प्रोसेस होता है ऑफलाइन के लिए। बट ऑनलाइन के लिए क्या है कि जैसे कि ऑनलाइन में हम करते हैं कि जैसे हमारा एक वेबसाइट हो, जहाँ पे हमारे जो भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड है, राइट, लाइक नॉन वेज है, वेज है, फास्ट फूड है, राइट। तो ये सारे वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, उनकी कैटेगरीज होना चाहिए, राइट। एंड अगर कोई यूजर वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जैसे कोई प्रोडक्ट्स, मतलब कोई आइटम सेलेक्ट करता है, जैसे नॉनवेज में जाके कोई जैसे चिकन किया या मटन किया या बिरयानी किया, जो भी हो गया, तो जैसे उसको सेलेक्ट करेगा तो उसमें हमारा क्वांटिटी और उसका जो प्राइस होगा ना, उसको वहाँ पे डिस्प्ले करेगा, राइट। जैसे ही वो यूजर सेलेक्ट करेगा उस प्रोडक्ट को, जैसे उसके अकॉर्डिंग उसका जो होगा कि शिपमेंट कितने टाइम में हम मतलब होगा, उसका पेमेंट कितना दिन में होगा, सीओ कैश ऑन डिलीवरी होगा या ऑनलाइन पेमेंट करोगे, राइट। तो उस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो जैसे यूजर वहाँ पे सेलेक्ट करेगा, उसको पेमेंट जैसे करना वो करेगा, शिपमेंट कैसे, कौन सा शिपमेंट होगा, अगर उसको फास्ट मतलब बहुत जल्दी चाहिए, लाइक विद इन हाफ एन आवर चाहिए, तो उसके लिए हम अगर चार्जेज रख देंगे लाइक 10 और 20 रुपीज़, राइट, तो वो मेरा जल्दी डिलीवरी होगा। और नॉर्मल डिलीवरी लाइक विद इन आवर अगर करना है तो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो जैसे यूजर वहाँ पे सिलेक्ट करता है, ऑर्डर कंप्लीट करेगा, अगर पेमेंट कर देता है तो सही है, और पेमेंट नहीं करता है फिर भी हम कैश ऑन डिलीवरी के लिए हम वहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो वहाँ पे एक रिसिप्ट निकल जाएगा, लाइक द कैश मेमो वहाँ पे जनरेट होगा। तो उसके थ्रू हम वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कि अगर पेमेंट हो गया है या नहीं हुआ है, तो उसका एक कॉपी वहाँ पे हम ऑर्डर के साथ लगाएंगे और फिर वो कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगा। तो ये सारे रिक्वायरमेंट जो है वो कहाँ से कौन कलेक्ट करता है, हर एक कंपनी में एक बिजनेस एनालिस्ट होता है,
तो वहाँ से वो सारे रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया और कंपनी में आया। कंपनी में आया कि यहाँ पे उसने सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन कहिए, या इसको हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं, जिसमें कि हम एक मेक श्योर होते हैं, राइट, कि ये जो प्रोडक्ट है वो डुएबल है कि नहीं, राइट, और हमारे कंपनी के पर्सपेक्टिव। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स इन द सेंस लाइक कॉस्ट 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 के बेसिस पे होता है, वो हमारे रिसोर्स के बेसिस पे होता है, वो हमारे टाइम के बेसिस पे होता है, कि जैसे कि हमको विद इन ए ईयर और विद इन 6 मंथ हमको ये प्रोडक्ट डिलीवर करना है, तो उसके लिए कितने रिसोर्स होंगे, उसके लिए कौन कौन से लैंग्वेज लगा, हमको जावा पे डेवलप करना है तो जावा वाले कितने हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, या और अगर अवेलेबल नहीं होते हमको कितने रिसोर्स की हायरिंग करनी पड़ेगी। सिमिलरली हमको फिर उसमें यूआई मतलब फ्रंट एंड की डिजाइन करनी है, तो फ्रंट एंड डिजाइन के लिए हमको कितने पास हमारे डेवलपर हैं, राइट, तो उसमें एंगुलर बेस है या CSS और HTML पे है, तो उसके करस्पॉन्डिंग भी हमारा हायरिंग प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर पे हम मतलब डिपेंड करके मतलब ये कंपनी में जो होता है फाइनेंस टीम, मैनेजमेंट टीम, उसके बाद होती है हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, डिजाइनिंग टीम होते हैं, मैनेजर होते हैं, तो ये सारे बैठते हैं और देखते हैं कि ये हमारे फिजिबली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ड्यूएबल है या नहीं है। अगर वो ड्यूएबल है तो फिर वो कंटिन्यू करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं उनका जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो वहाँ पे वो मना कर देते हैं। बट वो जैसे ही एग्री हुए, राइट, तो वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे टीम के साथ डिवाइड हो जाता है। जैसे टेस्टिंग टीम हो गया, हमारा डिजाइनिंग टीम हो गया, कोडिंग टीम, डेवलपमेंट टीम हो गया, तो ये सारे एक साथ बैठे हैं किसी कॉन्फ्रेंस रूम में, और वहाँ पे जो भी बिजनेस एनालिस्ट है वो सारे रिक्वायरमेंट को वहाँ पे सबके सामने डिस्क्राइब करता है, राइट। अब जैसे जो जो डिजाइनिंग टीम के लिए है डिजाइनिंग स्पेसिफिक, तो डिजाइनिंग टीम उसको पिक करती है। जो कोडिंग के लिए है लाइक डेवलपमेंट टीम के लिए है, तो डेवलपमेंट टीम उस पर फोकस करता है, और जो टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव होता है उस पर टेस्टिंग टीम फोकस करती है, राइट। यहाँ पे कोई इशू है इन बिटवीन? नो सर। ठीक है, अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे कैसे अब तीनों इसमें हो रहा है। तो अब हमारे पास क्या आता है, डिजाइनिंग टीम का आता है। तो यहाँ पे डिजाइनिंग टीम अपना स्टार्ट करेगा डिजाइनिंग प्रोसेस। मीनवाइल क्या करेगा, कोडिंग टीम जो डेवलपमेंट टीम होगा वो अपना जो API क्रिएशन होता है या उससे रिलेटेड जो है, मतलब इस टीम पे डिपेंडेंट जो टास्क नहीं है वो क्या करेगा, उस टास्क को स्टार्ट करेगा। और टेस्टिंग टीम क्या करेगा, टेस्टिंग टीम क्या करेगा, जो उसको रिक्वायरमेंट मिला है उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, टेस्ट केस राइटिंग स्टार्ट करेगा और टेस्ट केस डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे कि हाई लेवल डिजाइन ये तो होता है, जैसे कि आर्किटेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसने एक हाई लेवल डिजाइन ऐसे करके बता दिया कि यहाँ पे इस एप्लीकेशन में यहाँ पे 5-6 मॉड्यूल होंगे। जैसे कि एक लॉगिन पेज का मॉड्यूल होगा, एक होम पेज का मॉड्यूल होगा, एक प्रोडक्ट पेज का मॉड्यूल होगा, एक पेमेंट के पेज का मॉड्यूल होगा, और उसके बाद एक ऑर्डर पेज का होगा और एक ऑर्डर कंफर्मेशन का मॉड्यूल होगा, राइट। तो उसने एक हाई लेवल ये सारे चीज बता दिया कि ऐसे ऐसे होगा। तो हमारे हाई लेवल डिजाइन में वो आता है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि मैं एक पेन ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे वे में एक्सप्लेन हो जाएगा। एक हाई लेवल का मतलब ये हो गया, या मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। लेट मी, हाँ ये देखिए, अब हाई लेवल डिजाइन का मतलब क्या है, जैसे कि उसने बोला कि आपको 3 सेक्शन बताना है। जैसे एक वीमेन का सेक्शन होगा, एक ड्रेस का होगा, एक टी शर्ट का होगा, राइट। तो ये हमारे पास कितने सेक्शन हो गए, 3। तो उसने एक हाई लेवल बोल दिया कि ये 3 सेक्शन होना चाहिए। तो ये तो हो गया ना हाई लेवल। बट आपको बोला जाए कि लो लेवल में क्या होगा, तो इसके अंदर में जो सब मॉड्यूल्स होंगे, राइट, तो वो सारे हमारे लो लेवल में आ जाएंगे। मतलब कि आपको उसको बोलेंगे इन डेप्थ डिजाइन जो होगा वो लो लेवल का होगा। तो ये हो गया हमारा हाई लेवल, मतलब आपको बोल दिया गया कि हमारे पास 3 प्रोडक्ट की कैटेगरीज होनी चाहिए, तो ये हमारा हाई लेवल हो गया। अब बोलेंगे कि लो लेवल क्या होता है, तो इसके अंदर में अगर कोई सब मॉड्यूल्स है, सब कैटेगरीज है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, लो लेवल। जैसे कि हम वुमेन सेक्शन पे जैसे जाते हैं, तो ये देखिए आपको ये सारे कैटेगरी मिल जाएंगे, टी शर्ट हो गया,
ये हो गया, ये ड्रेसेस हो गया, ये टॉप्स हो गया, राइट। अगर इसके अंदर भी हम जाएंगे तो यहाँ पे भी उसकी कैटेगरीज मिल जाएगी, टी शर्ट के भी कैटेगरीज मिल जाएंगी, कैजुअल की भी कैटेगरीज मिल जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपको टी शर्ट्स यहाँ पे मिल गई, यहाँ पे वो सारे उसके फीचर्स हैं, राइट। तो ये सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे ड्रेसेस में जाएंगे हम, ड्रेसेस में, तो यहाँ पे भी ड्रेसेस में आपको मिल जाएंगे कैजुअल, इवनिंग, समर ड्रेसेस। टी शर्ट में जाएंगे तो टी शर्ट में भी आपको टी शर्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये सारे इन डिटेल्स में जितने इन डिटेल्स होंगे तो वो आपको मिलेंगे क्या, लो लेवल में। यहाँ पे देखिए कैजुअल करेंगे तो कैजुअल से रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होता है, राइट। तो हमारा ये किसके अंदर में आएगा, लो लेवल डिजाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, कोई क्वेरी? नहीं सर। ठीक है, नो सर। ओके, ठीक है। तो ये हमारा लो लेवल डिजाइन हो गया। उसके बाद आता है हमारा कोडिंग पार्ट। तो कोडिंग पार्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमारा डिजाइन मतलब यूजर इंटरफेस हुआ है, तो आप इसको कंसीडर कीजिए कि ये हमारा यूजर इंटरफेस है, राइट। यूजर इंटरफेस है, बट उसके बेसिस पे क्या करेगा डेवलपमेंट टीम अपना कोडिंग पार्ट स्टार्ट करेगा। ये केवल एक यूआई है, बट हम यहाँ पे अगर कुछ एंटर करें तो एंटर नहीं हो रहा है, बिकॉज वो तो केवल डिजाइन है ना, राइट। बट हम यहाँ कुछ एंटर करें, कुछ ये करें, कुछ बटन पे क्लिक करें तो कुछ एक्शन मतलब जनरेट नहीं, बिकॉज वो केवल डिजाइनिंग पार्ट ही कवर हुआ है, राइट। उस डिजाइनिंग को रेफर करके कोडिंग टीम, डेवलपमेंट टीम क्या करेगा, उसके बैकएंड में कोडिंग स्टार्ट करेगा, राइट। जो भी कोड होता है, मतलब जो भी लैंग्वेज हमारा प्रीफरेबल होगा, वहाँ पे जावा होगा, डॉटनेट होगा, पाइथन होगा, पीएचपी होगा, रूबी होगा, राइट। जो भी हमारा लैंग्वेज होगा प्रीफरेबल, उसका यूज करके वो क्या करेगा, डेवलपमेंट और कोडिंग स्टार्ट करेगा। जैसे ही हमारा कोडिंग ओवर होता है, राइट, तब हमारा यूनिट टेस्टिंग स्टार्ट होता है, राइट। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग होता है किसी स्पेसिफिक फीचर को टेस्ट करने का होता है, राइट। तो यूनिट टेस्टिंग में जैसे कि इसका कोड के बेसिस पे भी होता है, जैसे कि डेवलपमेंट टीम होता है या टेस्टिंग टीम भी होता है, तो उसको क्या करता है कि फीचर स्पेसिफिक कोड लिखता है, राइट। मतलब जैसे कि आपका फीचर स्पेसिफिक में क्या बोले, जैसे कि आपका लॉगिन का फीचर हो गया, तो लॉगिन के फीचर के लिए वो कोड लिखेगा, राइट। तो कोडिंग के बेसिस पे ही क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। जैसे कि अगर उसको क्रिएट अकाउंट का चेक करना है तो उसने केवल इस फीचर के लिए लिखा है, और लॉगिन के लिए करना है तो इस फीचर के लिए। मतलब इंडिपेंडेंट जो कोडिंग होता है ना, मॉड्यूल वाइज या फीचर वाइज, तो वो यहाँ पे होता है, राइट। और यहाँ पे वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और टेस्ट करेगा उस फीचर। यहाँ पे मूव करेगी इंटीग्रेशन पे, मीन्स व्हाट एवर द टेस्ट केस जैसे उन्होंने पहले लिख रखा है इस ड्यूरेशन में, और उन टेस्ट केसेस का यूज करके यहाँ पे वो क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे मतलब जो भी फीचर इंटीग्रेटेड है, किसी फीचर से इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड इन द सेंस सपोज कि आप, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे हम लॉगिन पेज है, राइट। ये लॉगिन पेज है, ये हमारा होम पेज है, ये होम पेज है, ये हमारा ऑर्डर कंफर्मेशन पेज है, ये हमारा पेमेंट पेज है, ये हमारा प्रोडक्ट पेज है, राइट। अब जैसे लॉगिन पेज पे जैसे हमने लॉगिन किया, राइट, तो जैसे ही हम होम पेज पे जाते हैं तो जिस यूजर ने यहाँ पे लॉगिन किया है तो उस यूजर का नेम हमारे होम पेज पे दिखता है, राइट। आपने देखा होगा किसी भी एप्लीकेशन को आप लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे ये दिखता है कि आफ्टर लॉगिन वहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ उस यूजर का नाम क्या है, राइट। मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पे दिख रहा है मनीष टेस्ट,
राइट। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन है यूजर का, कि जैसे कि हम लॉगिन पेज पे अपना डिटेल्स एंटर की है और जैसे ही हम होम पेज पे आते हैं तो यहाँ पे हमारा नेम रिफ्लेक्ट होता है या कहीं कहीं इमेज भी दिखता है, राइट। तो ये दोनों फीचर एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, राइट। और जैसे कि हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, राइट, और पेमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट किया और पेमेंट भी किया, ठीक है। और जैसे ही पेमेंट हमने किया और ऑर्डर कंफर्म किया तो हमारे इस ऑर्डर कंफर्मेशन पेज पे क्या दिखता है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी या प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे दिखता है, प्रोडक्ट का प्राइस दिखता है, और हमने कौन सी मेथड पेमेंट के लिए यूज किया, हमने क्रेडिट कार्ड यूज किया, नेट बैंकिंग यूज किया या कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया। तो हमने तो सेलेक्ट यहाँ पे किया था, प्रोडक्ट तो हमने प्रोडक्ट पेज पे सिलेक्ट किया था, पेमेंट हमने पेमेंट पेज पे सिलेक्ट किया था, बट ये ऑर्डर पेज पे दिखता है हमको, राइट। तो इन दोनों का इंटीग्रेशन हमारा किसके साथ है, इस मॉड्यूल के साथ है, ठीक है। ये पता चल गया इंटीग्रेशन क्या होता है। पल्लवी, प्रवीण, यस सर समझ में आया। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेशन सिनेरियो। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग में यह होता है कि हमारा कंप्लीट फीचर लाइक एंड टू एंड टेस्ट करते हैं फंक्शनलिटीज को। जैसे कि जो हमारा मतलब डेवलप हुआ फीचर लॉगिन पेज का, राइट। हमारा अगर लॉगिन पेज का फीचर डेवलप हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसका कंप्लीट एंड टू एंड टेस्ट करेंगे। लाइक हम लोग एक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक एक बार वैलिड इनपुट डालेंगे, एक बार इनवैलिड इनपुट डालेंगे, एक बार साइन इन करेंगे या फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, राइट। और इसमें जैसे कि ये तो हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन का हो गया ना, तो हम कंप्लीट एप्लीकेशन का टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, राइट, तो लॉगिन हमारा स्टार्टिंग होता है यहाँ से, राइट। लॉगिन कर लिया, यहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सर्च करेंगे, कोई प्रोडक्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे आगे, यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको डिस्क्रिप्शन दिखाएगा। मतलब एंड टू एंड सिस्टम मीन्स आपको एक कंप्लीट सिस्टम क्या बोलते हैं, जो एक कंप्लीट पैकेज होता है, राइट। तो उसी तरह हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे एक कंप्लीट पैकेज है। तो हम यहाँ पे इसका एंड टू एंड टेस्ट करेंगे, मतलब बिगिनिंग टू एंड। तो हम यहाँ पे कुछ ये चेंज करेंगे, ये चेंज करेंगे, हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, यहाँ पे हम इसको कंफर्म करेंगे, यहाँ पे दिखाएगा कि आपने तो प्रोडक्ट ऐड किया है, राइट। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, राइट। तो फिर हम आगे जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमको पूछेगा कि यहाँ पे एड्रेस एंटर करने के लिए, अगर हमारा एड्रेस जो हमने एंटर किया हुआ है अगर वो सेम है, राइट, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। मतलब एंड टू एंड का मतलब वही हो गया आपका कंप्लीट टेस्टिंग, ठीक है। हम यहाँ पे शिपिंग पेज पे आएंगे, यहाँ पे जो हमारा शिपमेंट मेथड अवेलेबल होगा तो उसके लिए $2 चार्ज कर रहे हैं, राइट। तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे एग्रीमेंट को। आगे जाएंगे पेमेंट पेज पे, तो हमारे पास पेमेंट्स के लिए भी मल्टीपल ऑप्शन है, तो हम इस पेमेंट मेथड को सिलेक्ट करते हैं, राइट। अब पेमेंट पेज पे जैसे आए तो ये हमको दिखा रहा है कि आपने टोटल अमाउंट जो है इतने डॉलर का होंगे, राइट। और फिर अगर आप एग्री हैं तो कंफर्म कीजिए, तो जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा तो हमारा ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा और कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही होता है सिस्टम टेस्टिंग में, कंप्लीट एंड टू एंड टेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो हमारा सिस्टम टेस्टिंग इसमें हो गया। और जैसे यहाँ पे हमारा क्यूए का टेस्टिंग कंप्लीट होता है और क्यूए मीन्स क्यूए अपना साइन अप करता है, क्यूए साइन अप देता है कि व्हाट एवर द मतलब जो भी हमारा एप्लीकेशन का टेस्टिंग था, जिस फीचर को टेस्ट करना था हमने उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, राइट। तब उसके बाद होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है और कौन करता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है वो क्लाइंट लोकेशन पे होता है, मतलब क्लाइंट साइड से होता है। अगर क्लाइंट के पास टेस्टिंग टीम है, राइट, तो वो अपने प्लेस पे टेस्टिंग करा सकते हैं, राइट। अगर वहाँ पे टेस्टिंग टीम नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो जो क्या करेंगे, जो हमारी कंपनी है तो वो बोलेंगे कि आप ये जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है आप अपने साइड से करा दीजिए, ठीक है। ठीक है,
तो जैसे ही हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यहाँ पे मतलब वो क्लाइंट बोलेगा तो उसके बाद वहाँ पे एक जो टीम बैठी रहेगी वो भी टेस्टिंग टीम ही रहती है। तो क्या करेगी, जो भी एप्लीकेशन है ना उसको अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट करेगी टेस्ट। ठीक है, तो फिर वो टेस्ट करेगी, अगर सब कुछ सही वर्क कर रहा है राइट, तो वो एक सिग्नल देगी, मतलब वो कंफर्मेशन देगी कि हाँ कि सब कुछ जैसे कि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट था उस रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे एप्लीकेशन का जो भी बिहेवियर है वो सही वर्क कर रहा है और हम लोग आगे मूव कर सकते हैं राइट। मतलब वो जो होता है हम उसको यूएटीवी बोलते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो सेपरेट एक अलग टॉपिक ही है। तो उसमें क्या क्या फेजेस होते हैं और क्या क्या पॉइंट्स होते हैं तो सब उसमें हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो होता है इसके बाद ये जैसे ही अप्रूवल इस पे मिलता है तब इसके बाद जो होता है हमारा एप्लीकेशन जो होता है क्लाइंट के प्रोडक्शन या लाइव इन्वायरमेंट पे वहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो जाता है राइट। मतलब हमारा एप्लीकेशन वहाँ पे लाइव हो जाता है। तो ये कंप्लीट फ्लो है हमारा वी एंड वी। सो यहाँ पे हम लोग सब कुछ क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं राइट, और यहाँ पे हम लोग उसको वैलिडेट कर रहे हैं। मतलब हमारा जो भी था यहाँ पे बेसिक थिंग्स जो है लाइक वो डिजाइनिंग पर्पज से हो या टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से हो, तो टेस्टिंग मेन तो हम लोग फोकस करते हैं टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से। तो टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टेस्ट केस राइट करते हैं और टेस्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं राइट। और जैसे ही हमारा कोडिंग कंप्लीट होता है तो उसी टेस्ट केसेस का हम लोग एग्जीक्यूट कर करके सारे फंक्शनलिटीज को चेक करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा वी एंड वी, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन क्या होता है। यस सर। ये पल्लवी आपके साइड से कोई क्वेरी? नो सर। ओके ठीक है। तो हमने ये जो सारे मॉडल्स सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर किया है ना, तो हम लोग एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे हम लोग एक बार यहाँ से भी कंफर्म कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, इसको एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। तो देखिए वेरिफिकेशन यहाँ पे है। वेरिफिकेशन में क्या है, इट हैज ए स्टैटिक एनालिसिस और द रिव्यू टेक्निक यूज्ड विदाउट एग्जीक्यूटिंग कोड यूजेस। सो हमने ऑलरेडी बोला कि वहाँ पे जो भी होता है एक मैनुअली वे में होता है, तो जहाँ पे हम लोग टेस्ट केस लिखते हैं और उसको डिजाइन करते हैं राइट। सो और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, द होल थिंग्स अबाउट द इवेल्युएटिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू फाइंड आउट वेदर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट आर मीट। ठीक है, तो हम लोग जो भी रिक्वायरमेंट हमारा वहाँ पे होता है तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग जो टेस्ट केस और ये डिजाइन करते हैं और आगे जाके हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअल में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है राइट। वही जो वेरिफिकेशन प्रोसेस था वो हम लोगों ने वहाँ पे किया राइट। और उसके बाद हमारा क्या वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या होता है, it involves the dynamic analysis of the functional as well as non-functional software testing is done with the help of the executing the code. So code executing in the sense यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा टेस्टिंग पर्सपेक्टिव से टेस्ट केसेस का, तो जो हमने टेस्ट केसेस डिजाइन कर रखा था वेरिफिकेशन फेज में राइट, उसी टेस्ट केसेस का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं लाइक हम फंक्शनल या नॉन फंक्शनल वे में करते हैं राइट। तो वहाँ पे फंक्शनल वे में जैसे हो गया कि हम उसका जैसे जो भी टेस्ट केसेस है हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं मतलब विदाउट टूल का। और नॉन फंक्शनल में क्या आ जाता है कि उसमें हम किसी टूल का यूज करके उस फंक्शनलिटी को चेक करते हैं राइट। तो दोनों टेस्टिंग के कैटेगरी में ही आता है बट उसका टाइप अलग अलग होता है राइट। तो वह जो हमने वेरिफिकेशन के पार्ट में हमने जो टेस्ट केसेस लिख रखा था और डॉक्यूमेंट जो हमने प्रिपेयर कर रखा था उसी का एग्जीक्यूट करके उसी का हम एग्जीक्यूशन कहाँ पे करते हैं, इस वैलिडेशन सेक्शन में करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं कि यूजर का जो भी रिक्वायरमेंट है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है राइट। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। नेक्स्ट आता है इट इवेलुएट द सॉफ्टवेयर prepared in the development stage to check whether they are met to the customer acceptance expectation or not. So हमने ऑलरेडी बोला
कि वो हम लोग उस फेज में आके वही वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पे वेरियस फेजेस ऑफ वैलिडेशन फेज फॉर वी मॉडल। वी मॉडल में के वैलिडेशन फेज में क्या क्या आता है। सो वैलिडेशन इन द सेंस राइट हैंड साइड, वेरिफिकेशन इन द सेंस लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में हमारा क्या आता है, इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज हमारा क्या आता है, यूनिट टेस्टिंग, राइट। सो यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग सेपरेट मॉड्यूल का यहाँ पे थे। यूनिट टेस्ट प्लान आर डेवलप ड्यूरिंग द मॉड्यूल डिजाइन फेज। सो मॉड्यूल डिजाइन फेज इन द मीन्स जो मॉड्यूल स्पेसिफिक हमारा कोई भी फीचर होता है, राइट, उसके बिहाफ पे हम करते हैं कि एक एक स्पेसिफिक फीचर को हम एक एक इंडिपेंडेंट फीचर का हम वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे यूनिट लेवल टेस्टिंग, राइट। जैसे कि वो हम वहाँ पे चेक करेंगे लाइक वो जैसे कि यूनिट टेस्टिंग वेरीफाइज दैट द स्मॉलेस्ट एंटिटी कैन बी फंक्शन करेक्टली व्हेन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोड और यू। मतलब जो भी जैसे ही हमारा कोडिंग, जैसे कि हमारा जो भी फीचर स्पेसिफिक है, चाहे वो स्मॉल फीचर हो या बड़ा फीचर हो, तो वो सारे उसके अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, फंक्शनली वो करेक्ट होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट हमारा पार्ट क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग वेरिफिकेशन पेज, वैलिडेशन पेज में। उसके बाद हमारा क्या आता है, इंटीग्रेशन टेस्ट, राइट। राइट हैंड साइड में आप जाओगे तो फर्स्ट में आपको यूनिट टेस्टिंग मिलेगा, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग मिलेगा। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की कि जो भी इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड सिनारियो होगा, राइट, लाइक द एनी लाइक कुछ डिपेंडेंसी, मतलब एक फीचर दूसरे फीचर पर डिपेंडेंट है, राइट, तो उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। मतलब जैसे कि हम लॉगिन हम पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और पेमेंट मेथड जैसे सेलेक्ट करते हैं तो वो पेमेंट मेथड किसी और मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है, राइट। जैसे कि हम पेमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और पेमेंट यहाँ पे करते हैं और उसका रिफ्लेक्शन किसी और मॉड्यूल पे होता है, राइट। तो हम वहाँ पे भी जाके क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हम इस मॉड्यूल को वेरीफाई किए, मतलब पेमेंट हमने यहाँ पे ऐड किया और वो रिफ्लेक्ट कहाँ पे हो रहा है, हमारा ऑर्डर कंफर्मेशन पेज पे हो रहा है। तो सो वहाँ पे कुछ ना कुछ दोनों मॉड्यूल के बीच में कुछ इंटीग्रेशन है, राइट, जो कि कॉमन है टू परफॉर्म द एक्टिविटी और टू वेरीफाई द लाइक द रिजल्ट, ठीक है। तो वहाँ पे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे पेमेंट ऐड किया है तो हमारा ऑर्डर कंफर्मेशन पेज पे वो विजिबल है और कस्टमर पर्सपेक्टिव से हम वहाँ पे मेक श्योर हो रहे हैं कि हाँ ये जो भी हमने पेमेंट ऐड किया है उतना ही पेमेंट इस पेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक दोनों के बीच में क्या है, एक इंटीग्रेशन हो गया, एक डिपेंडेंसी वहाँ पे हो रही है। तो एक ये इंटीग्रेशन का डेफिनेशन होता है। और यहाँ पे कम्युनिकेटर वो एक दूसरे के बीच में वो कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेज क्या आता है, सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग में हमने बोला कि वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन होता है हमारा उसका एंड टू एंड हम फीचर को टेस्ट करते हैं इसमें, ठीक है। जैसे सिस्टम टेस्ट आर डेवलप ड्यूरिंग द सिस्टम डिजाइन फेजेस। तो ये इनिशियल फेज में ही हमारा ये होता है जो डॉक्यूमेंट हमारा कंटेन करता है। तो हमको वहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हम एक फ्लो क्रिएट करते हैं कि जैसे हम किस फ्लो में एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे ताकि हम ऑल पॉसिबल वे में एप्लीकेशन की टेस्टिंग ईजी वे में परफॉर्म कर सकें, राइट। और हम उसको एक लाइक सिस्टम टेस्टिंग इंश्योर दैट द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एप्लीकेशन डेवलपर आर मीट। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम पूरा कंप्लीट टेस्टिंग करेंगे तो हम आफ्टर टेस्टिंग हम लोग एक आउटकम हमको एक मिले जिससे हम मेक श्योर हो जाए कि जो भी हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट था वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सिस्टम टेस्टिंग का। उसके बाद हमारा यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का आया। तो इट इज अ परफॉर्मेंस इन द यूजर इन्वायरमेंट। तो हमने बताया कि ये क्लाइंट साइड पे टेस्टिंग होता है, इसको हम स्टेजिंग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। जैसे हम लोग वो सारे आगे पढ़ेंगे वन बाई वन, ठीक है। तो दैट सिंपली
resembles the production unit. In this step, it is make sure that the software is ready to be used in the real world. Real world in the sense like the live environment or production environment. सो यूजर एक्सेप्टेंस मींस जो भी टेस्टिंग अगर क्यूए जब तक कंफर्मेशन नहीं देता है, अगर क्यूए कंफर्म हो गया और यहाँ से वो वो यहाँ से कंफर्मेशन देता है कि हमने जो भी टेस्टिंग था आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उस टेस्टिंग को परफॉर्म किया है और सब कुछ सही चल रहा है आपके अकॉर्डिंग, मीन्स हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा है, जो भी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो रही है। तो ये मतलब उसमें ज़्यादा है रिक्वेस्ट कि मीन्स आप अपने तरफ से टेस्टिंग करके एक कंफर्मेशन दीजिए ताकि हम फर्दर स्टेप के लिए मूव करें। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्लाइंट साइड में क्या होता है कि उस क्लाइंट के पास अगर कोई टेस्टिंग टीम है तो वो टेस्टिंग स्टार्ट करती है, अगर उसके पास कोई टेस्टिंग नहीं है तो सेम कंपनी में वो क्या करती है कि वो कुछ टेस्टिंग टीम वहाँ पे बिल्ड कराती है। तो वो टेस्टिंग टीम क्या करती है, उस रिक्वायरमेंट को और उस एप्लीकेशन को टेस्ट करती है फिर से, और टेस्ट करने के बाद वो कंफर्म करती है कि जो भी रिक्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर जो है सही वर्क कर रहा है। तो हम लोग आगे मतलब नेक्स्ट स्टेज पे और प्रोडक्शन के लिए हम इस कोड को मूव कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, हम UAT इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ये UAT लाइक द यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो ये इसका पार्ट हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, जैसे कि हम SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन begin the life cycle model just like the waterfall model, but it is the model before development is started, a system test plan is created. The test plan focuses on meeting the functionality specified in the requirement gathering. तो ये क्या होता है, SRS क्या होता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, राइट, जो जिसको हम बोलते हैं कि सॉफ्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो आप इसका फुल फॉर्म भी देखिएगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो जैसे ही जो रिक्वायरमेंट होता है, हमारे BA ने जो भी रिक्वायरमेंट, बिजनेस एनालिस्ट ने जो भी रिक्वायरमेंट क्लाइंट साइड से कस्टमर साइड से गैदर किया हुआ है, तो उन सारी रिक्वायरमेंट को एक डॉक्यूमेंट बनाता है, राइट, और उस डॉक्यूमेंट के अंदर सब कुछ मेंशन करता है, राइट। तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, SRS डॉक्यूमेंट, लाइक द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, राइट। तो ये क्या जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको कंटेन करेगा। तो हम इस मॉडल के अकॉर्डिंग, लाइक वी मॉडल के अकॉर्डिंग, इस रिक्वायरमेंट में अगर कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, राइट, तो इसमें हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, और अगर कुछ रिक्वायरमेंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड है तो क्लाइंट कस्टमर के कहने पे हम उसको इस डॉक्यूमेंट से हटा भी सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया यूजर रिक्वायरमेंट्स, means like the we can also say like the software requirement specification document। यहाँ पे हमारा था जो हाई लेवल डिजाइन, हम लोगों ने वो बताया ही था, हाई लेवल डिजाइन क्या होता है, जैसे कि उसमें जो भी हमारे फीचर होंगे एक हाई लेवली रिप्रेजेंटेशन होगा उसका, लाइक एक ब्लूप्रिंट जो होगा हाई लेवल कंटेन करेगा। और उसके बाद लो लेवल डिजाइन में क्या आ जाएगा, जो मॉड्यूल होगा उसको इन डेप्थ में, मतलब इन डेप्थ हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कोई मॉड्यूल है उसके अंदर सब मॉड्यूल है, उस सब मॉड्यूल के अंदर सब कैटेगरीज है, उस कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरीज है, मतलब इन डिटेल्स टॉप टू लाइक द बिग स्टार्टिंग टू एंड, जो भी हमारा उसमें मॉड्यूल्स या जो भी फंक्शनलिटी कंटेन करेगा तो सारे किस में आएंगे, लो लेवल डिजाइन। और हाई लेवल में क्या रहेगा, एक हाईली रिप्रेजेंटेड करने के लिए जो भी हमारा डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो उसके अंदर। उसके बाद जैसे आता है कोडिंग पार्ट, तो मैं ये सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो हमारे इस V मॉडल के यहाँ पे जो शेप में है ना, तो ये सारे पार्ट को मैं ये कर रहा हूँ, आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि क्या क्या इसमें होते हैं, तो इसलिए वो आपका रिप्रेजेंट होता है इसमें। हमारा कोडिंग पार्ट है, तो कोडिंग, तो आप ऑलरेडी यहाँ पे कोडिंग से अवेयर है। कोडिंग पार्ट में क्या होता है, जैसे कि ये बॉटम पे होता है, लाइक दिस इज एट द बॉटम ऑफ द वी से, सबसे नीचे में होता है। मॉड्यूल डिजाइन इज कन्वर्टेड इनटू द कोड बाय द डेवलपर, जो भी डेवलपर होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को
यूज करके जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है उसको डेवलप करते हैं। और उसके बाद डेवलपमेंट टीम भी मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनी लाइक द डेवलपमेंट टीम ही यूनिट टेस्ट केस दिखते हैं, राइट। बट अगर किसी किसी कंपनी में आप जाओगे तो वहाँ पे टेस्टिंग टीम भी यूनिट टेस्ट केसेस लिखती है, राइट। उसके बाद आता है वेयर टू यूज द वी मॉडल। मिस आप क्वेश्चन ये है कि हमने सब कुछ तो पढ़ लिया बट हमको अप्लाई कहाँ पे करना है, राइट। तो मेन यही थिंग है, यही मेन यही चीज़ हमको जानना है कि कहाँ पे यूज होता है इसका। ये डिपेंड करती है कंपनी पे, राइट, और टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पे, राइट। व्हेन द रिक्वायरमेंट इज वेल डिफाइंड एंड नॉट एम्बिग्यूअस, मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट सब कुछ क्लियर है, राइट, और वहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाले नहीं, राइट। वी शेप model should be used for the small to medium size project where the requirement are clearly defined and fixed। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारे हैं वो क्लियर है। प्रोजेक्ट का साइज आइदर मीडियम और स्मॉल होना चाहिए, और ज़्यादा मतलब जो होता है कि हमारे रिक्वायरमेंट मोस्टली क्लियर होना चाहिए, राइट। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी मॉडल के साथ जा सकते हैं। एडवांटेज आ गया, एडवांटेज क्या होता है, लाइक इसमें क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, तभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बहुत इजी है। टेस्टिंग मेथड्स लाइक द प्लानिंग टेस्ट डिजाइन हैपेंस वेल बिफोर द कोड। इसमें जो भी हमारा है लाइक द डिजाइनिंग टेस्टिंग का टेस्ट केस लिखना, वो सारे चीज़ हमारे क्या हो जाते हैं, कोडिंग से पहले हो जाते हैं। ये टाइम सेविंग है, राइट, बिकॉज टेस्टिंग टीम डिजाइनिंग टीम ऑल टीम को मतलब टाइम ज़्यादा मिलता है वहाँ पे, वो अपने बेसिक जो टास्क है उसको कंप्लीट करने के। और यहाँ पे ये वाटरफॉल मॉडल से ज़्यादा अच्छा है, राइट, बिकॉज यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट भी चेंज करा सकते हैं जाके बैक में, राइट, और हमारे पास सफिशिएंट टाइम भी होता है इसमें, पैरेलल टेस्टिंग और डेवलपमेंट भी होता है। हेलो हेलो। यस यस। मतलब सर वाटरफॉल मॉडल जब हम यूज करते हैं तो वो हाई प्रोजेक्ट के लिए होता है क्या? नहीं, उसमें होता है कि जैसे कि लाइफ क्रिटिकल और जो होता है ना हेल्थ क्रिटिकल, हाँ हाँ मसला, हाँ। ठीक है, ओके। वहाँ पे होता है कि आप रिक्वायरमेंट सडनली चेंज नहीं कर सकते, हाँ राइट। हाँ हाँ, यस हाँ, यस। अगर डेवलपमेंट आप कर रहे हैं ना तो फिर आप बैक में जाके अगर कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हुआ तो आप पीछे में जाके फिर उसको चेंजेज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे आप कर सकते हैं। मतलब डिपेंड अपॉन प्रोजेक्ट की वो हाई नहीं लेवल, मतलब बड़ा नहीं, है या स्मॉल। ठीक है, हाँ वो तो प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन आप जिस मॉडल को फॉलो करें रूल उसी का फॉलो कीजिएगा ना, ठीक है। इसमें होता है कि जैसे वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है ना उसको हम एक बार में फ्रीज कर देते हैं। अब फ्रीज करने का मतलब ये हो गया कि हम किसी चीज़ को फ्रीज करेंगे तो उसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते, राइट, कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ उसमें से रिमूव नहीं कर सकते। बट वी मॉडल में वैसा नहीं होता है, इसमें कि हम पैरेलल वे में भी टेस्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डेवलपर और टेस्टिंग टीम को भी मतलब ज़्यादा टाइम मिल जाता है कि रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करने और उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक स्टफ होता है उसको पूरा करने के लिए। अगर इन बिटवीन कोई रिक्वायरमेंट भी चेंज होता है तो हम उसको फुलफिल करते हैं, मतलब उसको कंप्लीट करते हैं बैक में जाके भी। और हमारा पैरेलल टेस्टिंग भी होता है, पैरेलल वर्क भी इसमें होता है, ठीक है। ये डिसएडवांटेज यहाँ पे है, नॉट ए गुड फॉर द कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, मतलब जो भी हमारा कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है तो उसके लिए ठीक नहीं है। इफ एनी चेंजेस हैपन इन द मिड वे, अगर बीच में कुछ होता है देन द टेस्ट डॉक्यूमेंट अलोंग विद द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैज टू बी अपडेटेड। ये मैंने बोला आपको कि इन बिटवीन में भी हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना होगा, हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें जाके हमको अपडेट करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट। It is not suitable for the project where the requirements are not clear and the content high risk of change। उस तरह की प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है जिसमें कि हमारा कोई रिक्वायरमेंट ही क्लियर नहीं हो, राइट। तो अगर रिक्वायरमेंट हमारा क्लियर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो हाई रिस्क हो जाएगा उसमें,
हमारा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा और कुछ हम श्योर भी नहीं होंगे कि हमारा आउटकम क्या होगा इसका। तो इसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, राइट। तभी हम उस पर मतलब प्रोजेक्ट पे हम टेस्टिंग अच्छे से और जो भी डेवलपमेंट होगा हम वो सारे करके टाइम पे डिलीवर कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस। अब आप लोग बताइए आपको इसमें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। कोई क्वेरी है तो आप फ्रीक्वेंटली उसको पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका डायग्राम। इस डायग्राम को आप माइंड में रखिए, ऐसे करके कोई भी पूछो तो यहाँ से ऐसे करके एक्सप्लेन करके ऐसे कर देना है। सीधे कोई पूछे कि वी एंड वी मॉडल क्या होता है तो सीधे आप बोलिए कि ये एक वेरिफिकेशन और एक वैलिडेशन मॉडल है। ये वी शेप में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिफिकेशन करते हैं और राइट हैंड साइड में वैलिडेट करते हैं उसको। वेरिफिकेशन इन द सेंस लाइक द रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है, उसमें डिजाइनिंग पार्ट कंटेन करता है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन में आपका आ जाएगा लाइक द टेस्ट केसेस हो जाएगा, टेस्ट डॉक्यूमेंट हो जाएगा, SRS हो जाएगा, जो यूजर रिक्वायरमेंट होता है उसका भी डॉक्यूमेंट क्रिएशन होता है। और एट द एंड लाइक द ऑन द बॉटम लाइक हमारा कोडिंग पार्ट होता है। जैसे कोडिंग पार्ट कंप्लीट होता है वहाँ पे हमारा यूनिट टेस्ट हो जाता है, यूनिट टेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग होता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है। तो ये सारे टेस्टिंग हम टेस्टिंग टीम किस बिहाफ पे करती है, उसने ऑलरेडी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा था टेस्ट केसेस का और टेस्ट डॉक्यूमेंट का, उसी के बिहाफ पे जो रिक्वायरमेंट होता है उसी के बिहाफ पे उसको एग्जीक्यूट करती है और वैलिडेट करती है। लास्ट में जाके यहाँ पे होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जैसे कि वो साइन ऑफ देता है तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए जाता है यूजर क्लाइंट साइड पे और यूजर साइड पे। क्लाइंट साइड पे क्लाइंट वहाँ पे टेस्टिंग करता है या करवाता है और जैसे ही वो अप्रूवल देता है फिर हम नेक्स्ट स्टेज लाइक द प्रोडक्शन और लाइफ पे उस एप्लीकेशन को मूव कर देते हैं। तो आप इस वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसका दो यहाँ पे एडवांटेज था, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे उसका एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज, तो ये दोनों आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देन उतना ही से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा किसी भी पर मुझे इंटरव्यू। थोड़ा सा डिसएडवांटेज का बता सकते हैं क्या, क्या कल बसा मतलब। हाँ, डिसएडवांटेज क्या है कि डिसएडवांटेज में नॉट ए गुड फॉर द कम्प्लेक्स, मतलब कोई भी जो हमारा कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है ना उस ये हमारा वी मॉडल सुटेबल नहीं है। ओके तो ओके फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद हुआ कि अगर अगर मिडवे में मतलब बीच में अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आता है, मतलब रिक्वायरमेंट कुछ चेंज होता है, मतलब रिक्वायरमेंट चेंज का मतलब कि कुछ ऐड भी हो सकता है कुछ रिमूव भी हो सकता है, राइट। जो हमारा मतलब स्टार्टिंग में जो रिक्वायरमेंट आया था तो उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था ना SRS, राइट। आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, यहाँ पे हमने बताया था एक SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है। यस यस तो जैसे ही हमारा कोई रिक्वायरमेंट आता है या कुछ अपडेट होता है तो हमको उस डॉक्यूमेंट में जाके वो सारे रिक्वायरमेंट्स को अपडेट करना होता है, राइट। तो एक तरह का रिक्वायरमेंट होगा कि हमको बार बार जाके उस डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। उसके बाद आया कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट वेयर द रिक्वायरमेंट आर, मतलब कोई ये उस तरह की प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है जहाँ पे रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है, ओके। राइट। तो ये हो गया डिसएडवांटेज। और वाटरफॉल मॉडल और वी मॉडल में क्या डिफरेंस मतलब। डिफरेंस इसमें है ना कि डिफरेंस आ गया आपका कि हम यहाँ पे वाटरफॉल में क्या था कि वो जो भी प्रोजेक्ट था ना वहाँ पे हमारी थी मतलब उसमें कि एक मिनट डिफरेंस उसमें ये है कि जैसे कि वाटरफॉल में क्या होता था, वाटरफॉल में आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए था तो प्रोडक्ट होगा आइदर वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो या मशीन क्रिटिकल या हेल्थ क्रिटिकल रिलेटेड हो, जिसमें कि हमारा रिक्वायरमेंट जो भी एक बार रिक्वायरमेंट आ जाए तो उस रिक्वायरमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते, राइट। बट यहाँ पे आपको यहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं,
राइट। कर सकते हैं। Yes, सेकेंड हो गया yes, कि yes. कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए वो सुटेबल नहीं है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स नहीं, yes. सुटेबल नहीं है, राइट। इस ये भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं है, राइट। वो उसमें होता है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट करेगा, जैसे कि लाइफ क्रिटिकल है, मशीन क्रिटिकल है, राइट। तो उसमें होता है कि वो बहुत लंबा ड्यूरेशन तक प्रोजेक्ट चल जाता है। और इसमें है कि हम दोनों टाइप के प्रोजेक्ट के साथ काम कर सकते हैं, स्मॉल और मीडियम वेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे Yes. हम यहाँ पे हम मीडियम और स्मॉल दोनों प्रोजेक्ट के लिए इसमें Yes, yes. सकते हैं। Got this point, sir. हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो भी होता है सब कुछ क्लियर होना चाहिए, राइट। हम अगर अगर कुछ रिक्वायरमेंट चेंज होता है इसमें तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और बैक में भी जाके हम टेस्टिंग कर लेंगे। बट वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, अगर रिक्वायरमेंट चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा एक बार रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गया तो हम फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। Change नहीं कर सकते. तो Yes. ये सारे पॉइंट्स है, तो ये थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, Okay. ठीक है। कोई क्वेरी? प्रवीण आपको No, sir. के पास? नो सर, प्रवीण, नो नो नो। ओके, ठीक है। सो वी आर स्टॉपिंग फॉर द डे एंड वी विल मीट टुमारो, राइट।